Good morning, dear students. Myself, Professor Naveen Kumar Arora, Dean, School for Earth and Environmental Sciences, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. I am also Secretary General of the Society for Environmental Sustainability, based in Lucknow, and its area is all over the country, all over India. Now, today I will discuss about what is environment and what is environmental sustainability. So I begin with how the solar system, the most acceptable theory for the formation of solar system or the universe is the Big Bang theory. So this universe, it is believed, was formed by a Big Bang, and it resulted in the formation of solar system as well. But in the solar system, at present we know that the life is present only on planet Earth, which is the third planet from the sun, and the conditions here are so important and so aligned that the life is not only present but it has a huge biodiversity. Planet Earth has a huge biodiversity of plants, animals, microorganisms. But initially, when planet Earth was formed, it was a very hot planet. There were soupy conditions, and in those conditions, there was water, electricity, means electric current, and lightning, I mean to say. And because of that, those soupy conditions, high temperature, lightning, resulted in the formation of, resulted in the reactions, biochemical reactions, chemical reactions on our planet, which resulted in the formation of one of the most stable biomolecules, which is known as DNA, deoxyribonucleic acid. Now, this DNA subsequently evolved, and the first life forms, the microbes, came on our planet. So I call it that biology came into existence due to the interaction of physics and chemistry. And these cells, the initial cells, were the microorganisms. At that time, our planet Earth was anaerobic in nature. The prebiotic atmosphere was highly reducing. What I want to say here is that free oxygen was absent from the atmosphere. But today we have 21% free oxygen in the atmosphere. Now, from where did this free oxygen come from? This free oxygen came from the photosynthesis. So initial microorganisms were evolved in a very anaerobic conditions, but then arrived the photosynthetic microbes. The pioneer photosynthetic microbes are known as blue-green algae or cyanobacteria. They started the oxygenic photosynthesis. And because of that, free oxygen came into the atmosphere. Due to the photolysis of water, oxygen was liberated, and subsequently from cyanobacteria or blue-green algae, other forms of algae, other forms of photosynthetic organisms, even green plants, and developed on this planet. And now we have 21% free oxygen on planet Earth, and the atmosphere has become oxygenic. Oxygenic, I want to say, means full of oxygen. It is at present the main constituent of the atmosphere is nitrogen, and second is oxygen. So this oxygen resulted in arrival of oxygen in the atmosphere, resulted the in the change in the evolution of very fast pace of evolution of life on Earth. The evolution took place very quickly because oxygen metabolism is much faster than the anaerobic metabolism. So evolution pace took a different pace altogether, and oxygen, due to oxygen, the evolution became very fast. And the huge biodiversity which we see on the planet Earth today, whether it is plants, microorganisms, or animals, including humans, is due to this revolution of evolution happening due to the arrival of oxygen into the atmosphere. Now, somewhere the evolution kept on going, and then came the humans, the Homo sapiens. Although primates, we evolved from primates,
and now Homo sapiens or the humans, we can say, control several things on this planet, on the environment of this planet. Now, this environment includes all those things like water, air, soil, atmosphere, all those things which surround us and give us, support us in our health, support us in our survival, support us in our multiplication. Us, I mean the plants, the animals, the microbes. This environment supports everyone to thrive, to multiply, to grow. But around 12,000 years ago, the humans started to colonize the planet. Means we started to form the colonies. Now these colonies, that means humans, rather than becoming wanderers, they became, uh, they formed colonies and started to clear the jungles, clear the forests for cultivation of crops. Because now they formed colonies, so they wanted food at one place. They were no more wanderers. They were not moving from one place to other. So they formed colonies and started agriculture. Now it is believed that scientists and the researchers and the environmentalists believe that this happened around 12,000 years ago. The colonization, the formation of colonies, human habitations on our planet, which resulted in the arrival of agriculture in a large way. Now, this agriculture took place around 10,000 years ago, and we started to clear the forests, the jungles, which started to result in the loss of biodiversity in our ecosystems, in our environment, on our planet. And around the year 1800, we started the industrial, we started the use of fossil fuels, resulting in it was the beginning of the industrial era. And around 1900, the industrial era became a very huge thing on this planet. The human-induced industrial era, where there was huge use of, और इसकी वजह से क्या हुआ, सन 1900 में आते आते इंडस्ट्रियल एरा आ गया, और इंडस्ट्रियल एरा आने की वजह से एक तो एग्रीकल्चर था हमारे साथ जो बढ़ता जा रहा था ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ, और हम जंगल्स को और इकोसिस्टम पे प्रभाव डालने लगे। और जब इंडस्ट्रियल एरा का चरम आने लगा, बढ़ने लगा सन 1900 के अराउंड, तब इंडस्ट्रियल एरा के साथ हमारा फॉसिल फ्यूल यूज बहुत बढ़ता चला गया, और हमने 1900 आकर, सन 1900 पर आकर हम लोग कह देते हैं कि एंथ्रोपोसीन एरा की शुरुआत हुई। एंथ्रोपोसीन एरा मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज से इंड्यूस्ड एरा है, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत अच्छा प्रभाव है एनवायरनमेंट। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके का प्रभाव है, मेरा मतलब है बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा ह्यूमन एक्टिविटीज का। एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत तेजी से प्रभाव पड़ने लगा एनवायरनमेंट पर, इकोसिस्टम्स पर, और हम देखने लगे एक बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस, जंगल का नष्ट होना, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज दिखने लगा। और इसी पे आते आते हम लोगों ने और प्रभाव डाला, और कई चीजों को इम्पैक्ट हम इकोसिस्टम पे डालें। अगर हम यही प्रोजेक्ट, आज हम कहते हैं कि हम एंथ्रोपोसीन एरा में हैं, और अगर हम ये प्रोजेक्शन 2050 तक ले जाते हैं तो यह समझ में आता है कि हमारी पॉपुलेशन 2 गुना बढ़ जाएगी पिछले 50 वर्षों के कंपैरिजन में, और डिमांड फॉर एनर्जी भी लगभग 2 गुना हो जाएगी। डिमांड फॉर एनर्जी का मतलब मेरा है फॉसिल फ्यूल बर्निंग और तरीके की एनर्जी डिमांड, टोटल एनर्जी डिमांड जो हमारी है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और वो 2 गुना बढ़ जाएगी 2050 तक। हमारी फूड डिमांड भी लगभग 2 गुनी होगी। तो सारी चीजें ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेट करती हैं। ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ता जाएगा, पानी की डिमांड, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो और यूजेस के लिए पानी हो, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो ये प्रोजेक्शंस हैं सन 2050 तक के, जो कि बहुत ही अच्छे बात नहीं है अगर हमने अपने तरीकों को नहीं बदला,
अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रीन टेक्नोलॉजी में नहीं बदला, अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस नहीं किया। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिनको हम ओवरऑल कह देते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन जनरेटेड एक्टिविटीज, हम इनको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, बहुत तेजी से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा पानी का संकट बढ़ता चला जा रहा है, हमारे बायोजियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे ओशियन यानी कि महासागर एसिडिफाई होते चले जा रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर पे प्रभाव पड़ रहा है हमारी पृथ्वी की, एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में तो हम लोग देखते हैं सर्दियों के दिनों में, खासकर जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय पे, कि एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ही अधिक हो जाता है, क्योंकि तब स्मॉग फॉर्मेशन हो जाता है। स्मॉग से मतलब है स्मॉग और फॉग दोनों मिलकर स्मॉग बना देते हैं, तो एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत अधिक हो जाता है ये सर्दियों के महीनों में, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। मैं भी उसका डाटा भी आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो ये सारी चीजें प्रभावित है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हमें इस दिशा में लेकर जा रही हैं कि हम अपने पर्यावरण को, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अपने अंदर कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे, हर इकाई लेवल पर चेंज लाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल और देता हूँ, हर वर्ष 10 मिलियन टन केमिकल पॉल्यूशन हम इकोसिस्टम में डालते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष 2 to 3 गीगाटन एयर पॉल्यूशन हम ऐड कर देते हैं हवा में, जिसकी वजह से 5 मिलियन डेथ हर वर्ष पृथ्वी पर होती है। ह्यूमंस की डेथ की बात कर रहा हूं, जो डेथ डायरेक्टली भी एयर पॉल्यूशन से हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्टली से मतलब किसी के फेफड़ों में या लंग्स में, मतलब डायरेक्ट पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो सकता है। जहां पर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है जिन शहरों में, वहां पे लोगों को अस्थमा हो सकता है, वहां पर लोगों को कैंसर हो सकता है, वहां पर लोगों को अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और कोविड-19 में ये देखने को मिला कि जहां पर ज्यादा एयर पॉल्यूशन था वहां पर डेथ रेट ज्यादा था। जिन शहरों में, खासकर गांव के कंपैरिजन में शहरों में एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, हमारे अर्बन सेंटर में एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। मैं पूरे धरती की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो एयर पॉल्यूशन जिन शहरों में ज्यादा था वहां डेथ रेट ज्यादा था। इनफैक्ट वुहान, जहां से ये वायरस उत्पन्न हुआ, कोरोना वायरस, वहां पर भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। और हमारे भी देश में कुछ शहरों में जो एयर पॉल्यूशन ज्यादा था, जैसे दिल्ली, एनसीआर और कुछ उसके आसपास, वहां डेथ रेट ज्यादा देखने को मिला। तो एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, हमारे लंग्स की क्षमता को कम करता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेथ्स होती है। इसी प्रकार प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऐसा माना जाता है, जो हमारा डेटा शो करता है कि 300 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक का वेस्ट हर साल जनरेट होता है और इकोसिस्टम में डाल दिया जाता है। अब प्लास्टिक, आप लोगों को पता होगा कि नॉन डिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड आसानी से नहीं होता। तो ये हर वर्ष जो इतना सारा प्लास्टिक इकोसिस्टम में ऐड किया जाता है, वो डिग्रेड नहीं होता और ऐड होता चला जाता है हमारे इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। मेटल पोल्यूशन, हैवी मेटल इंडस्ट्री द्वारा हम हैवी मेटल डालते हैं जो कि बहुत खतरनाक है, जैसे क्रोमियम, लेड, ऐसे आर्सेनिक। ये हैवी मेटल्स हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में, जहाँ पे बहुत सारी टैनरियां हैं, वहां पर क्रोमियम पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑल्दो भारत सरकार ने उस पर बहुत बड़े एक्शन लिए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ही समस्या का हल होगा। क्रोमियम की वजह से वहाँ पे लोगों का जीवन प्रभावित है, वहाँ के गाँव में बीमारियां देखने को मिलती हैं क्रोमियम की वजह से। तो ये मेटल पॉल्यूशन एक और समस्या है, जिसमें माना जाता है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन मेटल हम हर वर्ष इकोसिस्टम में डाल देते हैं। प्लास्टिक की पॉल्यूशन की तो बात यह है कि जितना प्लास्टिक हम ऐड करते हैं इकोसिस्टम में, उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाता है। बाकी 91% प्लास्टिक इकोसिस्टम में हर साल ऐड होता चला जाता है। ये प्लास्टिक का पॉल्यूशन अब समुद्रों तक पहुंच गया है,
और ये प्लास्टिक का पॉल्यूशन अब देखने को मिलता है आर्कटिक में नॉर्थ पोल पे, एंटार्क्टिक में साउथ पोल पे, माउंट एवरेस्ट हिमालय पे, हर जगह प्लास्टिक का पोल्यूशन पहुंच गया। कई जगह तो उसका विघटन हो जाता है, उसके स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक फूड चेन में इकट्ठा होता है। हमें पता है आज की ऐसे एनिमल्स में, जानवरों में जो नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं जैसे पोलर बियर, उनके अंदर भी प्लास्टिक और पेस्टिसाइड, माइक्रोप्लास्टिक और पेस्टिसाइड के अवशेष देखने को मिलते हैं, ऐसी रिसर्च बताती है। हमारे ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं, ऐसे रिसर्च बताती है। तो प्लास्टिक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसका रिप्लेस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी आदतों को, हमें अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक की जगह हम रिसाइक्लेबल बैग का यूज करें, रिसाइक्लेबल थैलों का यूज करें, कपड़े से बने थैलों का यूज करें, मार्केट में थैला लेकर जाएं, ना कि हम प्लास्टिक के थैलों की डिमांड करें। ऐसे ही कई और चीजें प्लास्टिक के बजाय हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। तो वो चीजों को हमें करना होगा। एक एक जन को अगर हम जुड़ेंगे, हम जागरूक करेंगे, तब जाके प्लास्टिक का पोल्यूशन कम होगा। अकेले गवर्नमेंट के करने से तो नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट तो बार बार स्कीम लाती है, बट इम्प्लीमेंट हम नागरिकों को ही करना होता है। अब एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगा, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत भयावह स्थिति के रूप में सामने आ रहा है। अभी सन 2021 में, नवंबर 2021 में ग्लासगो में कॉप समिट हुई, जिसमें लगभग 200 देशों ने हिस्सा लिया। उसका सबसे बड़ा मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस भी बहुत ज्यादा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी बोलते हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ही सीरियस है। कई बार हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट चेंज को लेकर उद्बोधन करते हैं पूरे विश्व का। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री भी क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े सजग रहते हैं और बार बार हमारे देश के वासियों को उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, करते हैं, हमारी सरकार करती है। क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है और इस साल तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्च में ही पारा 40 डिग्री टच कर गया था और ये लगातार आज 10 जून तक भी ये पारा 40 के ऊपर ही चल रहा है। बीच में बस 2-3 दिन ऐसे थे जहां पर ये टेम्परेचर 40 डिग्री से थोड़ा नीचे गया होगा, वरना 40 के लगातार ऊपर चल रहा है। इसको बोलते हैं हीट वेव चल रही है। इतनी बड़ी, इतने ज्यादा दिन हीट वेव चलना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारी खेती प्रभावित है, इससे हमारी कार्य करने की क्षमता प्रभावित है, इससे हमारी पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे इसीलिए बैन लगाया क्योंकि इतनी हीट वेव होने के कारण गेहूं के प्रोडक्शन पे इफेक्ट आया। और हम पहले अपनी जनसंख्या को, अपने देश के नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना चाहेंगे, ना कि हम उसको बाहर पहले एक्सपोर्ट करेंगे। पहले हम अपने देश को, अपने घर को देखेंगे। इसलिए भारत को ये वीट के एक्सपोर्ट को रोकना पड़ा इस हीट वेव की वजह से, जिसकी वजह से पूरे विश्व में क्राइसिस आ रहा है, फूड ग्रेन क्राइसिस, सिर्फ हीट वेव की वजह से। तो ये ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है क्लाइमेट चेंज से। कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है अचानक से, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर टेम्परेचर, कनाडा में पिछले वर्ष टेम्परेचर 50 डिग्री टच कर गया। कनाडा जैसे देश जो कि उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, वहां पर भी 50 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया था पिछले वर्ष। साइबेरिया जो उत्तरी ध्रुव के बहुत पास है, वहां पर 38 डिग्री पिछले वर्ष टेम्परेचर टच कर गया था। भारत में कई जगह 49 डिग्री, 49 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया इस वर्ष। दिल्ली में, लखनऊ में भी, और कई जगह उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में 49 डिग्री टेम्परेचर, 49 डिग्री इस वर्ष टच कर गया। और वह दिन दूर नहीं कि अगर हम ऐसे ही क्लाइमेट चेंज अपने अपने तरीके नहीं बदले तो हमारा ये टेम्परेचर 50 डिग्री भी दिल्ली और लखनऊ में टच करेगा, यह दिन दूर नहीं है। तो ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, CO2 एमिशन, जो कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री अपना वेस्ट एयर में एयर पॉल्यूशन करती हैं, गैसेस छोड़ती हैं, खास करके फॉसिल फ्यूल बर्निंग से ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण हवा में मात्रा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज
CO2, क्योंकि जो सूर्य की गर्मी है उसको रोकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन, वो भी बढ़ती चली जा रही है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इन दोनों को बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4। ये दोनों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिनकी मात्रा हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। एवरेज हमारी धरती का तापमान लगभग 1.2 से 1.3 बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल इरा से अगर हम कंपेयर करें। यानी कि अगर हम 1900 से पहले की बात करें तो हमारी धरती का एवरेज तापमान लगभग 1.2 1.3 डिग्री कम था, आज के कंपैरिजन में वो इतना बढ़ चुका है। और अगर हमने ये सुधार नहीं लाए, CO2 एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम नहीं किया, मीथेन एमिशन को कम नहीं किया, और भी कुछ कुछ गैसेज हैं जो माइनर रोल प्ले करती हैं, अगर हमने उनका वो एमिशन कम नहीं किया तो ये क्लाइमेट चेंज, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ये तापमान, एवरेज तापमान की मैं बात करता हूँ पूरी धरती का, 3 डिग्री सेंटीग्रेड सन 2100 तक, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति को पैदा कर देगा। हमारे आइस कैप सब मेल्ट कर जाएंगे, हमारे ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे, हमारे समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा धरती पे, जिसकी वजह से बहुत सारा जमीनी हिस्सा समुद्र में समा सकता है। फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी, जब ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे तो बड़ी बड़ी नदियां खतरे में आ जाएंगी जो ग्लेशियर से ही पानी लेकर चलती है, जैसे हमारे देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, चिनाब, ये सब नदियां ग्लेशियर से पानी लेकर चलती हैं और बहुत बड़ी सभ्यता को सपोर्ट करती हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पानी देती हैं, खनिज प्रोवाइड करती हैं, अच्छा खेती के लिए जमीन तैयार करती हैं ये नदियां। तो अगर ये सूखने लगेंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से तो बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे उत्पादन उल्टा घट जाएगा, जो हमें फूड की डिमांड हमारी दुगनी चाहिए, हमें पानी और ज्यादा चाहिए, वो उल्टा और कम हो जाएगा। फ्रेश वाटर, पर्टिकुलरली जो हमारा फ्रेश वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो घट के और कम हो सकता है। तो ये स्थिति हमारी बनती चली जा रही है। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, ये मेनली इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी, जो बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसका 3/4 हिस्सा इस जो CO2 एमिशन हो रहा है और एटमॉस्फेयर में हम लगातार CO2 को ऐड करते जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, उसका 3/4 हिस्सा यानी कि अराउंड 75% हिस्सा उसका आता है इंडस्ट्री के एमिशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, और बिल्डिंग्स में जो हम यूज करते हैं एनर्जी, जैसे ऑफिसेज में जो हमारे रहने की बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, या और बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से 75% आता है ये CO2 एमिशन। बाकी जो मेन एमिशन है इसके अलावा वो है एग्रीकल्चर से, जहाँ से लगभग 20% CO2 एमिशन, बाकी जो 75% के अलावा जो 20% CO2 एमिशन है वो एग्रीकल्चर के द्वारा। तो ये दो बड़े मेन सेक्टर हैं जहां पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, एनर्जी को, मतलब CO2 एमिशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि ज्यादा जो तापमान की वृद्धि हो रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर से ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा जल्दी से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम टेम्परेचर को देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए, कनाडा में तापमान 50 डिग्री टच करने लगा, साइबेरिया में 38 डिग्री पहुंच गया, भारत में भी इस बार 49 डिग्री पहुंच गया। ये सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एग्जाम्पल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है बनस्पत के सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध। इसलिए क्योंकि ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन, ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा व्हीकल्स, ज्यादा बिल्डिंग्स, ज्यादा एग्रीकल्चर, सब कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका मतलब वहां पे CO2 और मीथेन एमिशन भी ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि आर्कटिक रीजन, जो हमारा नॉर्थ पोल का रीजन है, वो खतरे में है। हिमालय, जिसको कि थर्ड पोल माना जाता है धरती का, यहाँ पर नॉर्थ
पोल, साउथ पोल के बाद सबसे ज्यादा आइस और स्नो है और सबसे ज्यादा पानी है, फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं। वहीं से बड़ी बड़ी नदियों के मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, वो वहां से वो खतरे में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही हिमालय आता है, वो भी खतरे में। जब लखनऊ में तापमान 50 डिग्री के आसपास, दिल्ली तो हमारे से हिमालय बहुत पास है, लखनऊ और दिल्ली से हिमालय बहुत पास है, वहां भी वो गर्मी का प्रभाव है और ये वो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है और वहां पे भी ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट। तो ये स्थिति बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है और भयावह स्थिति बनती चली जा रही है। एक और इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का कि इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स की वो बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज इंक्रीज्ड। अब अगर हम 20 वर्ष पहले की बात करें, उससे 4 गुना ज्यादा अब नेचुरल डिजास्टर्स प्रति वर्ष होने लगे। नेचुरल डिजास्टर्स में हम किसको मानते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स में हम मानते हैं जैसे कि सूखा, बहुत हैवी रेन, साइक्लोन्स, जंगल फायर, फॉरेस्ट फायर, इनको हम नेचुरल डिजास्टर्स में मानते हैं कि ये नेचर में अपने आप होते हैं। साइक्लोन पैदा होते हैं, जैसे भारत में भी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, तो हमारे अरेबियन सी एक तरफ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की तरफ, और नीचे इंडियन ओशियन है। वैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी भी इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे लगातार गर्मियों में साइक्लोन बनते हैं। तो देखा जा रहा है कि अब साइक्लोन बनने का दर बढ़ता चला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसी प्रकार ड्रॉट, सूखे का टाइम भी बढ़ता चला। अब आप देखिए कि मार्च से अब तक लगभग 90% कम बारिश हुई है नॉर्दर्न इंडिया में। उत्तरी भारत में मार्च से अब तक लगभग 90% कम बारिश हुई है। फरवरी के बाद बहुत ही कम बारिश हुई है। मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्री मानसून शावर भी अभी तक हमारे यहाँ टच नहीं करे। ये इतनी कम बारिश, ये बहुत लंबा सूखे का स्पेल हो गया जिससे पानी का क्राइसिस होता है। तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। ऐसे ही कभी बारिश होती है तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि अचानक से एक ही एरिया में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है। ये हिमालय में तो बहुत कॉमन है क्लाउड बर्स्ट होना, जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है। कई बार पूरे के पूरे हिमालय के रीजन में गांव बह जाते हैं, और सिर्फ हिमालय में नहीं, प्लेन्स में भी कई बार बाढ़ आ जाती है बहुत तेजी से, और इसकी वजह से व्यापक नुकसान होता है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, और देशों में भी ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत भी आता है और एशिया, साउथ एशिया। ऑल्दो एग्जाम्पल पूरे विश्व में देखे जाते हैं जहाँ बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स पिछले 2-3 वर्षों में हुए। और मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि केदारनाथ फ्लड 2013 में भारत में, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 6000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई और कई उसको एक बहुत ही बड़ी त्रासदी के रूप में देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, जंगल फायर जिसे हम इंडिया में हम उनको फॉरेस्ट फायर कहते हैं, वहां पे लोग ऑस्ट्रेलिया में उसको बुश फायर कहते हैं। 1000 किलोमीटर से ऊपर के जंगल नष्ट हो गए जंगल की आग से। ये टेम्परेचर अगर तापमान बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से जंगल में और लगने वाली आग की फ्रीक्वेंसी पूरे विश्व में बढ़ती चली जा रही है। अकेले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में 3 बिलियन एनिमल्स को नुकसान हुआ और 6 बिलियन हेक्टेयर जलकर जंगल खत्म हो गया। कई स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो कि लगभग 1.5 साल पहले हुई। साइबेरिया की हीट वेव का मैं एग्जांपल दे चुका हूं, 2021 में हुई, 38 डिग्री तापमान पहुंचा। यूरोप में हीट वेव आई जिसकी वजह से 70,000 लोगों की डेथ हुई सन 2019 में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कनाडा में तापमान हीट वेव में 50 डिग्री के लगभग टच कर गया। यूरोप में पिछले वर्ष 2021 में भारी फ्लडिंग हुई, कई देश एक साथ, जिसमें जर्मनी, बेल्जियम और उनके आसपास के देश फ्लड्स में डूब गए और भारी नुकसान हुआ। बताया जाता है 25 बिलियन $US खाक हो गया सिर्फ फ्लड्स की वजह से। तो ये इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं ये डिजास्टर, और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सन 2018 में केरला में बहुत तेज फ्लड आए भारी बारिश की वजह से, और सन 2021 के अक्टूबर में उत्तराखंड में भारी क्लाउड बर्स्ट हुआ
जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई कुमाऊं रीजन में और बहुत नुकसान हुआ, कई खेत और गांव बहकर खत्म हुए। ये नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसको बोला तो नेचुरल डिजास्टर जाता है, लेकिन मैं भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ एनवायरमेंट का, मैं एक स्टूडेंट हूँ एनवायरमेंट साइंस का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेचुरल डिजास्टर्स अब नहीं रहे, ये मैन मेड डिजास्टर्स। क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ा रहे हैं, ये डिजास्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहले तो हम उनको नेचुरल डिजास्टर्स मान सकते थे, लेकिन आज की डेट में हमें ये कहना होगा कि ये मैन मेड डिजास्टर्स। इसी प्रकार हम बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस देख रहे हैं, जंगल का कटान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट्स के, जो यूएनओ के एस्टिमेट्स हैं, उसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 70% फ्रेश वाटर एनिमल्स की कमी देखने को मिली है। फ्रेश वाटर एनिमल्स जैसे तालाब, लेक, पॉन्ड, नदियां, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार लगभग 40% मरीन एनिमल्स, जो समुद्र, ओशियन, सी में देखने को कमी मिली है। 40% टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लगभग 68% प्लांट्स और लगभग 50% कोरल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनमें कमी देखने को मिली है। और पिछले 200 वर्षों में लगभग 50% मीन स्पीशीज अबंडेंस कम हुआ। इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक मैं कई सारे बता चुका हूं, जिनमें एग्रीकल्चर ने शुरुआत करी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ, जिसका पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ये सब इसके कारण है। एक नजरिया ये भी कहता है कि इस वक्त हम, जो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कुछ, कि इस वक्त हम छठे मास एक्सटिंक्शन के थ्रू गुजर रहे हैं। 5 पिछले मास एक्सटिंक्शन जो थे वो नेचुरल थे, लेकिन ये छठा मास एक्सटिंक्शन जो है ये मैन मेड है, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 200 वर्ष में इतनी सारी स्पीशीज कम हो गई कि लगभग आधी रह गई। ये बहुत तेजी से छठा मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। ये इतनी तेजी से होना हमारे लिए भी खतरनाक है। अगर इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो हमारा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बहुत तेजी से डिप्लीट होगा, डिग्रेड होगा, जो हमारे को भी आगे खतरे में लाएगा। और मैं ये आगे कोट करना चाहता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि छठा मास एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्सटिंक्शन के साथ ही खत्म होगा अगर हमने अपने को नहीं सुधारा। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है। जिस प्रकार से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से CO2 एमिशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे वातावरण में। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें 2050 तक अपना फूड प्रोडक्शन दुगना करना पड़ेगा इन ही कंडीशंस में, जहां हमारा लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। तो हमें इन्हीं कंडीशंस में अपना फूड प्रोडक्शन 2 गुना करना पड़ेगा सन 2050 तक, अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि हमने IT सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की करी। आज देखिए मैं आप सब लोगों से ज्वाइन कर रहा हूँ, एक कमरे में बैठकर डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं कर रहा, एक इग्नू सेंटर में बैठकर मैं आप लोगों से यहाँ पे क्लास ले पा रहा हूँ। ये IT सेक्टर का रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। हम लोग, आज इंसान मून पे कदम रख चुका है, मार्स पे जाने की बात हो रही है, रोज हमारे सैटेलाइट इंसान को लेकर भी और स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं, यान, हमारे अंतरिक्ष यान, और कई पूरे सोलर सिस्टम को हमने ऑलमोस्ट स्टडी कर डाला है। इतनी ज्यादा तरक्की हुई है मेडिकल साइंस में भी। आप देखिए कोविड-19 में मात्र 2 वर्षों के अंदर कई प्रकार के वैक्सीन डेवलप कर लिए गए, जो कि रिकॉर्ड है। इससे पहले इतनी तेजी से वैक्सीन कभी डेवलप नहीं हुए थे, और इस वैक्सीन डेवलपमेंट की वजह से बहुत तेजी से कोरोना पे कंट्रोल भी पाया जा सका। तो ये बहुत मेडिकल साइंस में भी एडवांसमेंट हुए। लेकिन इसके उलट मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आज भी धरती पे 9 में से 1 व्यक्ति भूखा सोता है, अपने घर में भूखा सोता है। पता नहीं उसके पास घर है भी कि नहीं, लेकिन 9 में से 1 व्यक्ति आज भी धरती पे भूखा सोता है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये स्थिति है आज फूड की। यानी कि आज भी हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की एकदम से आवश्यकता है।
लेकिन 2050 की अगर हम प्रोजेक्शन करें तो ये दुगना करने की आवश्यकता होगी, फूड प्रोडक्शन दुगना करने की आवश्यकता हो जाएगी अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को सबको फूड देना है, जिसको कि हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस ने इसको वर्ड दिया है फूड सिक्योरिटी। तो ये फूड सिक्योरिटी लाने के लिए, ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन लाने के लिए हमें 2050 तक अपना फूड प्रोडक्शन 2 गुना करना पड़ेगा। और बिना, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचाएं, हम क्लाइमेट चेंज को बचाएं जो कि सूखे की तरफ हमें लेके जाती है। क्लाइमेट चेंज का टेम्परेचर बढ़ने से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। बहुत इंटेंसिव फार्मिंग की प्रैक्टिसेस में परिवर्तन लाना होगा, जहां पर हम केमिकल्स का बहुतायत में यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पानी का बहुत दोहन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, पानी के कंजर्वेशन पे। तब जाकर हम ये फूड सिक्योरिटी ला पाएंगे, अपना लैंड डिग्रेडेशन रोक पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने फूड सिक्योरिटी को लेकर अभी कई बार बयान दिए हैं कि हम बहुत खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अभी हालात पैदा हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये सब के बाद मैं जो ये पूरी टाइम लाइन्स के साथ जो धरती पर चेंज आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, सन 2015 में हमारे यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें कि लगभग सारे देश सिग्नेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर करते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर किए गए कि हम कैसे इस प्लेनेट की रक्षा करें, हम कैसे अपनी रक्षा करें। प्लेनेट को बचाने का मतलब है कि हम अपने को कैसे बचा पाएंगे, आने वाली जनरेशंस को कैसे एक अच्छा प्लेनेट, एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ सीधे सीधे एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हम सस्टेन करें और सारे ऑर्गेनिजम्स को भी सस्टेन करने दें, तभी हम भी बच पाएंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारी चीजों को कवर करते हैं, ना सिर्फ हमारे अपने हेल्थ के लिए ये अच्छे हैं, हमारे अपने मैनकाइंड के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये दूसरे पशु पक्षी, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लैंड, ओशियन, सबके लिए ये देकर चले हैं इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है, सारे देश लगभग दुनिया के सिग्नेटरी हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ सीधे सीधे एनवायरनमेंट को लेकर है, और कुछ हमारे सोशल एंगल को लेकर हैं, कुछ हमारे इकोनॉमिक्स को लेकर भी है, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, अगर कहीं पर सूखा पड़ जाता है तो वहां पर लैंड डिग्रेडेशन होगा, वहां पर एग्रीकल्चर डिग्रेडेशन होगा, वहां पर इकोनॉमी गिर जाएगी, वहां पर क्राइम रेट बढ़ जाएगा, वहां पर बच्चों के स्कूल जाने की संख्या कम हो जाएगी, एजुकेशन पे इफेक्ट आ जाएगा, जेंडर इक्वलिटी पे इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वहां लड़कियों को ज्यादा भेदभाव होने की समस्या बढ़ सकती है। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर कहीं पर समस्या आती है, जैसे कोविड पेंडेमिक आया या कहीं पर सूखा पड़ता है, वहां पर इकोनॉमिक डाइट डाउन होती है, तो माँ बाप लड़की जो होती है उनकी बेटी को पढ़ने के लिए कम भेजते हैं, लड़कों को ज्यादा भेजने लगते हैं। मतलब लड़कों को तो फिर भी भेजते हैं, लड़कियों को कम कर देते हैं कि आप घर पे ही रुकिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक उनको अलाउ नहीं करती। तो जेंडर इक्वलिटी तक पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सबको कवर करते हैं। ये जेंडर इक्वलिटी को कवर करते हैं, पॉवर्टी को कवर करते हैं, फूड सिक्योरिटी को कवर करते हैं, हेल्थ को कवर करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, क्लीन वाटर फॉर ऑल, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल सिटीज, इनइक्वालिटी को रिमूव करना, कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, लाइफ बिलो वाटर को कंजर्व करना, लाइफ ऑन लैंड को कंजर्व करना, और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, और पार्टनरशिप जिसमें कि सारे देश मिलकर काम करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसके तरफ बढ़ने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर प्लेनेट दे सकें, एक बेहतर इकोसिस्टम और एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकें। सस्टेन करने का मतलब ही यही है कि एक सतत तरीके से हम आने वाले समय को और अच्छा बना सकें, सस्टेन कर सकें, ना कि हम आज ही इतना खराब कर दें कि आने वाली जनरेशन को और खराब सिस्टम मिले जिसमें उनका सर्वाइवल ही खत्म, मुश्किल में पड़ जाए, जो कि हमने कर दिया। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में यूएनओ ने डिक्लेयर करे, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 2030 का टारगेट लेकर यूनाइटेड नेशंस ने, सारे देशों ने हस्ताक्षर किए कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। और इसमें कई देशों में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, और कई देश इसमें आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, लेकिन कुछ देश उसमें अभी भी
उतना योगदान नहीं कर पा रहे। तो हमें सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, जैसे हम कहते थे कोविड वॉरियर, ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि एनवायरनमेंट वॉरियर हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा। इस धरती पे हर नागरिक को एनवायरनमेंट वॉरियर बनना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। जागरूकता एनवायरनमेंट को लेकर हमें स्प्रेड करनी होगी, जैसे कोविड को लेकर जागरूकता स्प्रेड की गई जन जन तक, ऐसे ही जन जन तक कोविड-19 के तरह ही एनवायरनमेंट का जो पेंडेमिक, मैं तो इसको भी पेंडेमिक कहता हूँ, जो पिछले 100 वर्षों से हमारी धरती पर चल रहा है, इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो अपने ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी लेवल से ही एनवायरमेंटल साइंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे बच्चे तभी से एनवायरनमेंट की अहमियत को समझे, एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझे, संरक्षण हमारे कैसे संरक्षण किया जा सकता है, रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, पानी का, जंगलों का, पशु पक्षियों का, उसको समझें उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है अभी, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए गए कि 2030 का टारगेट लेकर अगर हम अभी भी चेत जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मिलकर काम करेंगे, सारे देश, सारे नागरिक, धरती के नागरिक, वो सारे मिलकर अगर काम करेंगे तो अभी भी हम इस चेंज को वापस ला सकते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को वापस ठीक कर सकते हैं। और कोविड-19 ने हमें ये सिखाया, कोविड-19 ने हमें ये सिखाया कि जब लॉकडाउन लगा 2 साल रुक रुक कर, जब लॉकडाउन लगा तो प्रकृति ने कम बैक किया, एयर पॉल्यूशन कम हुआ, वाटर पॉल्यूशन कम हुआ, हमारी नदियां जैसे कि गंगा और यमुना स्वच्छ हो गई थी, गंगा में पानी पीने लायक हो गया था हरिद्वार तक, और कई जगह जंगलों में जानवर देखने को ज्यादा मिलने लगे, पॉल्यूशन दूर दूर से, बर्फ की घाटियां शहरों से दिखने लगी, उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की, जहां से पहले दिखती भी नहीं थी क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था। इसलिए ये सीखने को मिला कि ऐसा किया जा सकता है, हम अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ कर सकते हैं। तो वही कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजीज, जिसकी मैं अगले 15 मिनट में बात करूंगा, वो हम अगर अपनाएंगे तो हमारा ये एनवायरनमेंट सुधर सकता है आने वाले समय में, जिसकी तरफ काम भी चल रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की हम बात। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में सबसे बड़ा मैंने बोला एनर्जी का बहुत ज्यादा योगदान है। एनर्जी 75% जो हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है, CO2 गैस एमिशन हो रहा है, वो एनर्जी सेक्टर से और इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। तो एनर्जी को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत आवश्यक हो गया, जिसमें कई देशों पे, यूनाइटेड नेशंस भी इसको लेकर बहुत सीरियस है, COP26 मीटिंग हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और अभी भारत में भी इसको लेकर बहुत सजगता है कि हम अपनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी की तरफ चले, कन्वर्ट करें। ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी है जैसे इथेनॉल, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से हम इथेनॉल बनाते हैं, वो एक एग्जांपल है ग्रीन एनर्जी, वो CO2 एमिशन को बहुत कम कर सकता है। ऐसी ग्रीन एनर्जी है हाइड्रोजन, ऐसी ग्रीन एनर्जी है सोलर एनर्जी, ऐसी ग्रीन एनर्जी है विंड एनर्जी। तो हमें इन ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा, हमें फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई देश इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमारा देश भी इस तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है। मैं कल ही प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बात सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि ग्रीन एनर्जी की तरफ भारतवर्ष ने बहुत तेजी से कदम उठाए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये ग्रीन एनर्जी हमें बचा सकती है, CO2 एमिशन को बहुत तेजी से कम कर सकती है। इसके टारगेट्स बनाकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है, उनको हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। दूसरा क्या है? नेचुरल सॉल्यूशन। हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, वो सॉल्यूशन जो सस्टेनेबल है। जो चीजें ज्यादा कार्बन एमिशन करती हैं उन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, जो चीजें कार्बन एमिशन के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन ज्यादा करके बनती हैं वो प्रोडक्ट, उन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए। और जो चीजें नेचुरल या ग्रीन है, जो CO2 एमिशन या और कोई पॉल्यूशन नहीं करती, उनको टैक्स कम करना चाहिए। और ये जो टैक्स का कलेक्शन है, इस टैक्स से हमें कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए, या नई रिसर्च के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए, या ग्रीन मेथड्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक और तरीका है जिसपे काफी वर्क हो रहा है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर आप सुने, जैसे एप्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स में एप्पल के फोन आते हैं, एप्पल के लैपटॉप आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जीरो कार्बन इंडस्ट्री है, जीरो कार्बन, हम कार्बन
एमिट नहीं करते उतना जितना हम यूज करते हैं, यानी कि हमारा लेवल आ गया है जीरो कार्बन। तो हमें जीरो कार्बन की तरफ मूव करना पड़ेगा कि हम CO2 एमिशन को कम करें, या जितना CO2 एमिशन करते हैं उतना ही वापस सीक्वेस्टर करें, वापस लें, जिससे कि वो CO2 लेवल और ना बढ़े। तो ये कैसे पॉसिबल होगा CO2 लेवल को जीरो करना और ना बढ़े? एक और तरीका है कि हम प्लांटेशन बहुत तेजी से बढ़ाएं, जंगलों की रक्षा करें और प्लांटेशन बढ़ाएं। समुद्र में पॉल्यूशन ना करें, समुद्र की भी रक्षा करना इसका एक हिस्सा है, क्योंकि 3/4 हमारा प्लेनेट समुद्र से है, 3/4 हमारे प्लेनेट पर महासागर और समुद्र, तो उनकी भी रक्षा करना है। वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट डंप किए जा रहे हैं प्रेजेंट, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, प्लास्टिक, हैवी मेटल डंप किए जा रहे हैं, तो उनको रोकना होगा, कम करना होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हर दूसरी जो ऑक्सीजन की सांस हम ले रहे हैं वो समुद्र से आ रही है, क्योंकि 3/4 धरती समुद्र से कवर्ड है, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये समुद्र के पॉल्यूशन को रोकना होगा। हमें उन टेक्नोलॉजीज में निवेश करना होगा जो ग्रीन है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी देशों में ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम उन टेक्नोलॉजीज में निवेश करें जो कि ग्रीन है, तो हमारा आगे अच्छा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बायो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना होगा बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स। तो हम अपनी लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे। पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल और इकोसिस्टम को और ह्यूमंस को भी। एक तो वो बायो मैग्निफिकेशन करते हैं फूड चेन में, बीमारियां करते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस करते हैं और ह्यूमंस तक पहुंचकर बीमारियां करते हैं। कैंसर, ट्यूमर, ये आज पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। किडनी फेलियर और कई सारे फेलियर्स, वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसकी हमें रिप्लेस करना होगा बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भारतवर्ष में और कई देशों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी मिट्टी का संरक्षण कर पा रहे हैं। मिट्टी में बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट्स को हेल्प, कोई नाइट्रोजन फिक्स करता है, कोई फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करता है। अगर हम ये बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो वो माइक्रोब्स संरक्षित रहेंगे। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड डालते जाएंगे जो कि बहुत हानिकारक है, तो ये जो यूजफुल माइक्रोब हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फॉस्फेट स्टेबलाइज करते हैं और नाना प्रकार से प्लांट, पेड़ पौधों को सहायता करते हैं, वो खत्म होते चले और मिट्टी डिग्रेड होती चली। तो ये एक ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रीन टेक्नोलॉजी। जैसे ही बायोप्लास्टिक्स भी प्लास्टिक का एक ऐसा फॉर्म है जो डिग्रेडेबल है। ये एग्री वेस्ट से बनते हैं बायोप्लास्टिक्स। ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की हेल्प से भी बनाए जा सकते हैं और कई जगह पे ऑलरेडी बायोप्लास्टिक बनाने शुरू कर दिए। जहां पर आप ऐसे प्लास्टिक की बात करते हैं कि बायोप्लास्टिक का मतलब कि आपने उसको यूज किया और थ्रो कर दिया तो वो डिग्रेड हो जाए, ये पॉसिबल है। ऑलरेडी एग्री वेस्ट से ये बनाए जा रहे हैं। मैं एग्जांपल अपनी लैब का दूंगा। हमारी लैब में भी ऐसे पत्तल और दोने बनाए जाते हैं जो प्लास्टिक फ्री हैं, अपने उससे बनाते हैं हम लोग एग्री वेस्ट, और उसको अगर यूज करके जो जैसे पिकनिक मनाने लोग जाते हैं, अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का देख रहा था, लोग वहां पर गए दर्शन करने और बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट वहां छोड़कर आ गए। माउंट एवरेस्ट के फोटोग्राफ मेरे पास है जहाँ पर प्लास्टिक और मेटल पड़ा हुआ है। तो वहां पर बायोडिग्रेडेबल चीजें लेके जाएं लोग। जैसे नेशनल पार्क्स, भारत में इतने अच्छे अच्छे नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, रणथंभौर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क में जब लोग टूरिस्ट जाते हैं तो प्लास्टिक ना लेकर ये डिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक लेकर जाएं, उसका इस्तेमाल करें, या कपड़ों का थैला लेकर जाएं, तो चेंज हर जगह से आएगा। फिर एक और तकनीक है बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन से हम माइक्रोब्स और प्लांट्स की हेल्प से जहां पर ऑलरेडी पॉल्यूशन हो चुका है उसको ठीक करते हैं। ये बहुत ही एक बहुत अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोब्स के और पेड़ पौधों के इस्तेमाल से हम पॉल्यूशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सक्सेस स्टोरीज है, बहुत जगह सक्सेस देखने को मिलती है। बहुत ऑयल स्पिल जैसे हो जाते हैं ओशियन में, समुद्र में कई बार तेल बिखर जाता है,
कोई टैंकर का एक्सीडेंट हो गया या पाइपलाइन फट गई तो जो ये फॉसिल फ्यूल है ये समुद्र में बिखर जाता है या नदियों में बिखर जाता है या मिट्टी में बिखर जाता है। तो ये ऑयल बहुत खतरनाक होता है, ये लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, सतह के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, सनलाइट को कट ऑफ कर देता है। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहां माइक्रोब उस पूरे तेल को खा जाता है, डिग्रेड कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायो रिमीडिएशन, जिसकी में माइक्रोब्स और प्लांट्स की हेल्प से जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड और डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको हम ठीक करते हैं। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमारी लैब में भी बायो रिमीडिएशन पे बहुत ज्यादा काम होता है। हमने डिग्रेडेड लैंड को ठीक करते हैं, जो सेलाइन लैंड है जहाँ पॉल्यूशन की वजह से मिट्टी खराब हो गई उसको हम माइक्रोब्स की हेल्प से ठीक करते हैं, बहुत सक्सेसफुली हो जाता है। और ये वापस उसी प्रकार हो जाता है जैसे आज से 50 वर्ष पहले या पॉल्यूशन से पहले था। पेस्टिसाइड भी डिग्रेड किए जा सकते हैं इसकी मदद से। तो ये बायो रिमीडिएशन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम माइक्रोब्स और पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और अपने इकोसिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि ये 8.5% पर ईयर की ग्रोथ है इस टेक्नोलॉजी, जो कि जीडीपी से भी ज्यादा है। 8.5% प्रति ईयर की तेजी से बायो रिमीडिएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिसमें हम अपने इकोसिस्टम, वैसे भी 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड ऑफ रिस्टोरेशन का नाम दिया। 2021 से 2030 डेकेड ऑफ रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब वापस ठीक करना है इकोसिस्टम, जो हमने बिगाड़ दिए, जो हमने खराब कर दिए, उनको अब हमें वापस से ठीक करना है जैसे वो पहले थे। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वापस आ जाए, वहाँ पर मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, पानी है तो वाटर बॉडीज इंप्रूव कर जाए, वो वापस पॉल्यूशन फ्री हो जाए। इसलिए इसका नाम दिया गया डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन। ये डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हम इतना खराब कर चुके हैं अभी पीछे कि अब हमें रिस्टोर करना है। अब सिर्फ बात कंजर्वेशन की नहीं रही, सिर्फ कंजर्व करना है, कंजर्व तो करना ही है, लेकिन अगर कोई इकोसिस्टम खराब हो चुका है, एक लेवल से ज्यादा खराब हो चुका है, तो उसको कंजर्व करके हम क्या करेंगे? अगर लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, वहां पर यूजफुल माइक्रोब्स है नहीं, वहां पर यूजफुल बायोडाइवर्सिटी है नहीं, वहां पर हनी बीज है नहीं, वहां पर इंसेक्ट्स है नहीं, वहां पर चिड़िया है नहीं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जो इकोसिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर वो सब है ही नहीं तो उस इकोसिस्टम को कंजर्व कर हम क्या करेंगे? इसीलिए उसको रिस्टोर करना है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 को बोला है कि ये डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन है। यहाँ पर हमें वो सारे इकोसिस्टम जो प्रभावित हैं, जो खराब हो चुके हैं, जो डिग्रेड हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करना है। और बायो रिमीडिएशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये एक नेचुरल ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम नेचर से ही लिए हुए माइक्रोब्स और पेड़ पौधों को इस्तेमाल करके इकोसिस्टम को ठीक करते हैं। तो ये एक और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, जो फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी कि हमें अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान देना है। देखिए, हमें अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है। अगर हमें एनवायरनमेंट को अपने चारों तरफ ठीक करना है तो एक एक इंसान को अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना है, हमें मैक्सिमम तरीके से डिग्रेडेबल चीजों को यूज करना है, और उसी कड़ी में फूड की भी बात है। हम ज्यादा इंपोर्ट करके फूड ना खाएं, लोकल फूड को बढ़ावा दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन घटता है, इससे लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। सस्टेनेबल फूड वही है जो लोकल है। वैसे भी लोकल फूड हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्योंकि लोकल फूड जो डेवलप होता है किसी गांव में, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही गांव में, हमारे ही शहरों के आसपास, वो वहाँ की क्लाइमेट के अनुरूप है। तो वो फूड, जैसे गर्मियों में हमें अलग तरीके के फूड मिलते हैं, गर्मियों में हमें आम मिलता है, गर्मियों में हमें खरबूजा मिलता है, गर्मियों में हमें तरबूज मिलता है, गर्मियों में हमें अलग प्रकार की दालें मिलती हैं, चावल मिलता है, सर्दियों में हमें फिर एप्पल मिलने लगता है, सर्दियों में हमें और तरीके के फ्रूट्स और वो मिलने लगते हैं, अनाज, जैसे मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, मेथी, ये सब मिलने लगते हैं। तो वो अलग अलग है, वो क्लाइमेट के अनुरूप है। तो अगर हम वैसा फूड लेंगे जो क्लाइमेट के अनुरूप है और लोकल है, वो हमें ज्यादा अच्छी डाइट देगा, ज्यादा इम्यूनिटी देगा। और कोविड-19 में तो ये बताया, ये हमें पता चल गया कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल फूड का अगर हम सेवन करेंगे, एक तो हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, और अपनी सेहत को भी अच्छा रखेंगे। तो लोकल फूड की बात ये है कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़ता है।
इंपोर्ट कम करने से हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, हम लोकल किसान को अपने सहायता कर रहे हैं, उससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। और इंपोर्ट कम करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, क्योंकि इंपोर्ट में ट्रांसपोर्ट चाहिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होगा। तो हमें लोकल फूड की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि एग्जाम्पल है, जो कि हमें आगे चल के अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी बायोलॉजिकल तकनीक हैं, कई सारे बायोलॉजिकल मेथड हैं, जिसको अपनाने से आज भी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जिसको अपनाने से आज भी हम ये जो इतना नुकसान हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसको कम कर सकते हैं और कई समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। टारगेट यह है कि हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाने दें। अभी ऑलरेडी प्री इंडस्ट्रियल एरा से आज के कंपैरिजन में टेम्परेचर 1.2 से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर ये 1.5 सेंटीग्रेड अभी टारगेट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या COP26 या पेरिस एग्रीमेंट, उसमें टारगेट ये है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर को ऊपर हम ना जाने दें, उसी के अंदर ही रखें, उसी के अंदर कंट्रोल करें। क्योंकि अभी से ही 1.5 डिग्री में ही इतनी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं, तो अगर 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर धरती का, तो उससे तो और भयावह स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि ये किया जा सकता है, आज की डेट में भी ये किया जा सकता है। और लास्ट में मैं अपनी इस टॉक को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोई और प्लेनेट नहीं है। हमारे पास एक धरती है, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, बाकी लोग भी इसको मदर अर्थ कहते हैं। सभी ने धरती को माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि यही हमें जिंदा रखती है, यही हमें आगे बढ़ने को देती है। यहीं पे हम रहते हैं, यहीं पर सारे जीव जंतु और भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को मैं कोट करता हूँ, देयर इज नो प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लेनेट बी। हमारे पास और कोई प्लेनेट नहीं है, हमारे पास और कोई इसलिए प्लान भी नहीं है। हमें इसी को संरक्षण करना पड़ेगा, इसी को ठीक करना पड़ेगा। यही हमारा घर है, यही हमारी जगह है, जहाँ पर हमें आने वाली जनरेशंस की, हमारे मैन ह्यूमंस की और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की रहेंगी। हमें सबको जीवित रहने का मौका देना चाहिए। हर पेड़, हर पशु, हर पक्षी, एवरी प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो स्पीशीज, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। सबको ग्रो करने का, मल्टीप्लाई करने का मौका देना चाहिए। और एक और बात जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जस्ट 3-4 दिन पहले कही, एंडिंग हंगर इज विद इन आवर रीच, यानी कि हम हंगर को खत्म कर सकते हैं, भूख को। बट अनलेस वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे, वी फेस द स्पेक्टर ऑफ ग्लोबल फूड शॉर्टेज इन कमिंग मंथ्स। लेकिन अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी से नहीं करी, तो आगे और समस्या विभत्स रूप ले सकती है। Our only chance of lifting millions of people out of hunger is to act together urgently and with solidarity. हमें मिलकर काम करना होगा, साथ साथ काम करना होगा। हर एक नागरिक को इस धरती पर अपना योगदान देना होगा। हमें जागरूक करना होगा आसपास के लोगों को। मैं कहता हूं कि जैसे कि, फिर से रिपीट करता हूं, जैसे कोविड-19 में कोविड वॉरियर डॉक्टर्स को, नर्सेस को कहा जाता था, पुलिस वालों को, ऐसे ही एनवायरनमेंट के लिए हर नागरिक को और खास करके एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट को एनवायरमेंटल वॉरियर बनना होगा। ना सिर्फ खुद जागरूक होकर उसको प्लेनेट की रक्षा करनी होगी, बचाना होगा हमारे वृक्षों को, जंगल को, जीव जंतुओं को, बल्कि और लोगों को भी जागरूक करना होगा। हम कई सारे ऐसे तरीकों से सबको जागरूक कर सकते हैं। हम प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं, हम व्हीकल का पूलिंग कर सकते हैं, हम ज्यादा पैदल चल सकते हैं, जिससे हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और पोल्यूशन भी कम होगा। हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम मैंने कहा प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं रिसाइक्लेबल क्लोथ्स या और चीजों से। ऐसे अगर हम स्टेप्स लेंगे तो हम जरूर अपने प्लेनेट को ग्रीन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि, और इग्नू सेंटर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस टॉक को देने के लिए। नमस्कार।